How you're doing? So in this video, we'll talk and discuss in detail regarding the bond yield, bond price, and how the monetary policy affects the bond price. What is the relation between bond yield and bond price? And also I'll explain you with certain examples. So in this lecture, we'll study in detail regarding the bond. First, I'll explain you the concept of bond. Then we'll study further in detail regarding the curve, also regarding what is the relation between bond yield and the bond price. Okay, so I'll talk in detail. Like we are already aware of certain articles in various newspapers like Indian Express, Financial Express. So these are regarding the bond yields. Like न्यूज़पेपर में आता है बॉन्ड यील्ड्स जो है दे आर डाउन बिकॉज ऑफ द ग्लोबल क्रैश. फिर आता है कभी कभार कि यूएस बॉन्ड यील्ड्स पे इफेक्ट हो रहा है, तो मार्केट कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है, कभी ग्लोबली क्रैश आ जाता है. जैसे येस बैंक ने सेल किया है इतने बॉन्ड्स. सो आई विल डिस्कस दीज टॉपिक्स ऑल्सो इन डिटेल so that you don't have to mug it up. So before starting my video, these are the UPSC CSC batches जो स्टार्ट होगी 9 फरवरी को, एंड दीज आर बाय आर टॉप एजुकेटर्स एट अनअकैडमी. सो इसमें जो भी आपका मीडियम ऑफ लैंग्वेज है सो अब वो आप ऑप्ट कर सकते हो. अगर आप इस साल प्रिपेयर कर रहे हो, इस साल एग्जाम दे रहे हो इन 2022 like Mission 2022, it will be bilingual. And if your medium is English, so this is another course that is 2022. And if you are planning to appear in 2023, so there are other courses also that is in English also and bilingual also. You can opt for these as per your preferences. And also there is a combo pack also that is different courses, and you will get 22% off directly with the combo plus 10% off if you'll apply my code, and my code is Tripti10. So you will get an extra discount over that. So it's a 18-month combo for 2023 if you're planning to do so, and it will be approximately 63,000, and this is the iconic package which will cost around 76,000. So I'll tell you the details also of the iconic subscription. If you opt for iconic subscription, so there will be a proper study planner for you. There will be a session also with the educators, open house with educators. Personal coaching will be done. Live to live mentorship will be also done and provided to you. Mains question answers, Q&A practice will be done. So these are the benefits if you opt for a iconic subscription. And you can also purchase a loan also. It's easy to apply, and there is 0% interest rate and no processing fees. Approval will be done in 2 hours. Within the 2 hours it will be done and you can take that. Okay, so let's begin our topic, that is bond. See, bond basically क्या होता है? Bond means debt. Debt is basically a loan. Simple भाषा में bond का मतलब होता है लोन लेना, ठीक है? So it's an instrument to borrow the money. Borrow means to लोन लेना, debt लेना. सो ये कोई भी इशू कर सकता है. अब जैसे हम न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, एक होता है गवर्नमेंट बॉन्ड, एक होता है सॉवरेन बॉन्ड्स, एक होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स. सो इट कैन बी इशूड बाय अ कंट्रीज गवर्नमेंट ऑल्सो, उसको कहते हैं सॉवरेन बॉन्ड. या कंपनी भी इशू कर सकती है, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड भी, सो दैट उसको जो फंड्स है वो रेज कर सके. अब आता है कूपन रेट. नाउ कूपन रेट से पहले एक कॉन्सेप्ट आता है इंटरेस्ट रेट. सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द इंटरेस्ट रेट. लेकिन जो बॉन्ड पे हमें इंटरेस्ट रेट मिलता है उसको कूपन रेट कहते हैं. अभी हम एक एग्जांपल से समझते हैं. ये एक बॉन्ड है. अब ये इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि इसका रीज़न है. सी, एक बॉन्ड में अब क्या क्या इस पर लिखा हुआ है. एक तो लिखा है ट्रेजरी बॉन्ड, एक लिखा है 1000, और एक लिखा है इसका टाइम पीरियड. सो इसमें कोई भी तरह का बॉन्ड होगा उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें फिक्स रहती है, वो बदलती नहीं है, उस पर फिक्स रहती है, उस पर लिखा हुआ होगा. पहली बात तो उसकी फेस वैल्यू. फेस वैल्यू मतलब कितनी कीमत है उस बॉन्ड की. जैसे इसमें 1000 लिखा है इस एग्जाम्पल में, तो फेस वैल्यू इसकी हो गई 1000, तो ये फिक्स रहेगी, ये चेंज नहीं होगी. फिर लिखा है इसमें टाइम पीरियड 2003 से लेकर 2008 तक. सो दिस इज़ द मेच्योरिटी पीरियड. दिस इज़ कॉल्ड द मेच्योरिटी पीरियड. सो दिस इज़ ऑल्सो फिक्स, दैट इज़ 2003 to 2008. ये भी चेंज नहीं होगा जो लिखा हुआ है बॉन्ड पे. सो ये चीज़ें होती है. और इंटरेस्ट रेट होता है एक,
तो बॉन्ड के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट मिलता है उसको कूपन रेट कहते हैं, बस नाम का डिफरेंस है, नेमिंग का डिफरेंस। सो दिस इज द कूपन रेट दैट इज 10%। मैं मान लेती हूँ कि 1000 इसकी फेस वैल्यू है, इस बॉन्ड की वैल्यू 1000 है और इस पे जो कूपन रेट है वो 10% है। सो दिस इज ऑल्सो फिक्स्ड। तो ये चीज़ें कभी भी बदली नहीं जाएंगी बॉन्ड के ऊपर। अब आती है बात कि बॉन्ड होल्डर कौन होता है, इशूअर कौन होता है। अब सपोज अगर दो पार्टीज हैं ए और बी, तो अगर ए बॉन्ड के पैसे दे रहा है इसको, तो बी जो है इन रिटर्न बॉन्ड देगा। दैट इज ये अगर 1000 रुपये दे रहा है बी को, तो बी जो है वो इन रिटर्न क्या देगा, बॉन्ड एग्रीमेंट होगा इनके बीच में। तो इसमें ए जो है इट इज़ द इशूअर और बी जो है ही इज़ द बॉन्ड होल्डर। तो ये कुछ टर्म्स है इकोनॉमिक्स के जो हमने पढ़ लिए हैं। सो इसमें अब देखते हैं ये जो फॉर्मूला है कि बॉन्ड यील्ड इज इक्वल टू कूपन पेमेंट अपॉन बॉन्ड प्राइस, ये मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगी कि कैसे आता है, कैसे डिराइव होता है। लेकिन अभी हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करती हूँ मैं। अब मैंने बताया एक प्राइमरी मार्केट है, तो प्राइमरी मार्केट में दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है। सपोज मैंने बोला, अभी एग्जाम्पल दिया ए और बी। अब ए ने दिया इसको बॉन्ड दैट इज 1000 रुपये की फेस वैल्यू थी और बी देगा इन रिटर्न एग्रीमेंट। सो इधर बी जो हो गया वो हो गया बॉन्ड होल्डर एंड ए जो है वो होगा इशूअर। ये पूरी इकोनॉमिक्स की टर्म्स है, भाषा है उसकी, उसको सिंप्लीफाई किया है। अब इसमें 1000 रुपये जो है वो उसकी फेस वैल्यू हो गई, कूपन रेट हो गया इसका 10% इंटरेस्ट रेट जो इस पर मिलेगा। और मैं मान लेती हूँ इसकी जो मेच्योरिटी है, टाइम पीरियड है, वो उसका 5 ईयर्स मान लेती हूँ मैं। अब सपोज बी है, बी को पैसे चाहिए पहले से ही, ठीक है, लेकिन अब ये जाएगा सी के पास, दैट इज थर्ड पार्टी के पास। तो अगर ये सी के पास जाएगा, एक और पार्टी इन्वॉल्व हो गई, लेकिन ये जो केस है प्राइमरी मार्केट का नहीं हुआ, ये सेकेंडरी मार्केट का हो गया क्योंकि 2 से ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए पर्सन, ठीक है, 2 से ज़्यादा पार्टीज इन्वॉल्व हो गई। सो दिस इज द केस ऑफ सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट में कुछ चीज़ें वेरी कर जाती है। अब मैंने आपको बताया कि प्राइमरी मार्केट में ये कुछ चीज़ें फिक्स रहती है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई आ जाता है। तो जो इसमें रेट होगा, जो मुझे कूपन रेट इसमें मिल रहा है 10%, वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन ऐसा नहीं था प्राइमरी मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में होगा। अब जैसे इसकी फेस वैल्यू सपोज 1000 रुपये है और मैंने बोला कि फर्स्ट केस ले लेते हैं कि डिमांड जो है उस वक्त काफ़ी हाई चल रही है, तो 1000 रुपये की जगह जो है वो 1200 रुपये में भी लेने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि वी नो द सिंपल कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स, अगर डिमांड इज हाई प्राइस विल ऑल्सो बी हाई, विच मीन्स बॉन्ड प्राइस विल बी हाई। तो अगर 1000 रुपये की फेस वैल्यू थी, वो 1200 रुपये में भी खरीदने को तैयार है। तो विच मीन्स पहले मेरे को 10% जो था 1000 रुपये पे मिल रहा था, कितना हुआ ये 1000 रुपये पे मिल रहा था, कितना 10%, इस पर सीधा 10% मिल रहा था। सो ये हुआ 100 रुपये। अब मेरे को 10% किस पे मिलेगा, 1200 पे। तो दैट इज 100 रुपये मिलेंगे मेरे को 1200 पे। तो ये हो गया, अब इक्वेशन चेंज हो गई। तो इस पे हमने देखा इक्वेशन चेंज हो गई। तो पहले ये था 10% और ये कितना होगा 8%, ठीक है। अब मैं दूसरा केस समझाती हूँ इस पर। दैट इज अगर अभी मैंने बताया डिमांड अगर हाई हो गई तो प्राइस भी हाई हो गया। 100 रुपये पहले मुझे 1000 पे मिल रहे थे, अभी 100 रुपये मेरे को 1200 पे मिलेंगे। तो ये पहले 10% था, ये हो जाएगा 8%। अब केस आता है अगर डिमांड जो है वो कम है, तो बी जो है वो सी के पास गया था, अगर डिमांड कम है, इसकी फेस वैल्यू 1000 रुपये है, इसको बस बेचना है, तो ये तो खरीद ही लेगा, 800 में खरीदेगा, 1000 में तो खरीदेगा नहीं क्योंकि डिमांड कम है, तो प्राइस भी कम होगा, तो बॉन्ड प्राइस भी कम होगा। विच मीन्स मेरे को जो 100 रुपये इंटरेस्ट जो है कूपन रेट है वो तो फिक्स रहता है, तो वो तो 100 रुपये ही है, लेकिन वो 800 पे मिलेगा, तो और भी कम हो गया। 800 पे अगर मिलेगा तो ये ऑब्वियसली सिंपल सी सैट अगर हम अप्लाई करते हैं ये हो जाएगा 12%। तो ये 3 केसेस देखे हमने, ये इस पर 8% आया, इस पर 12% आया। तो इसको मैं डिराइव करने के बाद ये कह सकती हूँ कि जो बॉन्ड यील्ड है मेरा, दैट इज़ बॉन्ड यील्ड मतलब जैसे 10% आ रहा है, 8% आ रहा है, 12% आ रहा है, तो वो किस पे डिपेंडेंट है, कूपन रेट। जैसे 100 रुपये है, ये तो फिक्स है मेरा, फिक्स ही रहेगा, अपॉन में डिवाइडेड बाय बॉन्ड प्राइस। तो बॉन्ड प्राइस जो है वो डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। सो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड यील्ड। तो हमने ये जो फॉर्मूला था मेरे प्रीवियस इसमें मैंने जो पिक्चराइजेशन में डाला है, सो बॉन्ड यील्ड का जो फॉर्मूला है दैट विल बी कूपन पेमेंट। कूपन पेमेंट मतलब कि कूपन रेट हो गया जो कि फिक्स रहता है,
फिक्स ही होता है, मैंने बताया, जैसे कि 10% ले लिया मैंने 100 रुपये, और बॉन्ड प्राइस क्या हो गया, जो कि डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। तो अगर डिमांड हाई है और प्राइस भी हाई है, तो जैसे 100 रुपये मिल रहा था 1200 पे मिलेगा, तो ये हो गया 8%। और अगर डिमांड कम है, प्राइस भी कम होगा, तो इस 100 रुपये जो कि फिक्स है, तो ये 1200 था, डिमांड कम है तो 800 हो गया, तो ये हो गया 12%। तो दिस इज़ आवर बॉन्ड यील्ड, और इस केस में बॉन्ड यील्ड ये हो गया। तो सिंपल फॉर्मूला है। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट थिंग इज़, अब जो ये टॉपिक है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आप इसका आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। इसी बेसिस पे है कि गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स है, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट इज एक्शन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व, सेकेंड इज एक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड इज इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट। तो इनमें से कौन सी चीज़ जो है, कौन सा एक्शन है जो बॉन्ड यील्ड को इफेक्ट करेगा? तो योर ऑप्शंस आर A 1 only, B 2 only, C all of the above, and D is 1 and 3. सो कमेंट्स में आप बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, एंड आई विल क्रॉस चेक ऑल्सो जिसका भी आंसर सही रहेगा। एंड एक और क्वेश्चन, अब जैसे हमने पढ़ लिया पूरा कि बॉन्ड यील्ड जो है इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू बॉन्ड प्राइस, ये हमने देख लिया फॉर्मूले से और खुद समझा इस फॉर्मूले को, अब रटना नहीं पड़ेगा। अब जैसे मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी हमें पता है दो तरह की होती है, एक होती है एक्सपेंशनरी और एक होती है टाइट, या जैसे टाइट हो गई, या फिर डियर मनी पॉलिसी कहते हैं उसको। तो इसमें अब आप बताओ कि अगर बॉन्ड प्राइस सपोज कम है तो डिमांड भी कम है, तो ये कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी में होगा ये वाला केस? अगर क्या ये एप्लीकेबल होगा एक्सपेंशनरी में या फिर टाइट या डियर पॉलिसी पे? सो प्लीज़ कमेंट्स में आप बताइए इसका आंसर मॉनेटरी पॉलिसी का, उसी बेसिस पे जो मैंने आपको सिंपल केस जो है एग्जाम्पल में समझाया है। थैंक यू, एंड इफ़ यू आर न्यू यू कैन सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू सो मच।